Alright, now we need to start with a very important concept which is by the name of monetary and liquidity estimates. Now, why do we need to study the monetary and the liquidity estimates? The first concept is the monetary estimates, which basically means the money supply in the economy. अब बेटा मनी सप्लाई के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? Because we want stability in our economy. और स्टेबिलिटी तब होगा when demand for money is equal to the supply of money. तो अगर supply of money बढ़ जाता है, if the supply of money is more, then can I say it can lead to lot of economic problems. Imagine करो मनी सप्लाई ज्यादा है, गुड्स का सप्लाई कम है, तो अपने कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगा. वाइस वर्सा, मनी सप्लाई अगर कम है, गुड्स का सप्लाई ज्यादा है, तो अपने कंट्री में डिफ्लेशन हो जाएगा. So somewhere or the other, if the money supply is not kept in a balance with the demand for money, then an economy will face the problems of inflation and deflation. Inflation and deflation will in return lead to economic instability. And my dear friends, I am sure we all do not want any further instability in an economy. इसीलिए ये जरूरी है कि हम मनी सप्लाई को समझें. Now, when you understand the concept of money supply, we need to understand how is it measured. So, RBI is the responsible authority for the measurement of money supply. अब RBI ने 3 working groups बनाए. One was probably in the years of 1960s. Another was probably in the years of 1970s, 77, 78 के आसपास. And the third working group was made in the year 1998. So we are supposed to study about 2 working groups. The second working group of RBI and the third working group of RBI. Second and third working group of RBI gave a formula to measure the money supply. मतलब हमारे कंट्री में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, वो मेजरमेंट करने का तरीका आरबीआई ने ढूंढ निकाला. एंड आरबीआई टर्म्स देम एज द मॉनेटरी एग्रीगेट्स. द सेकेंड वर्किंग ग्रुप एग्रीगेट्स आर द ओल्ड वन एज कंपेयर्ड टू द थर्ड वर्किंग ग्रुप एग्रीगेट्स. सो स्टार्टिंग ऑफ विथ money supply or the measurement of money supply according to RBI's second working group, 4 estimates दिए हैं बेटा. Now those 4 estimates you can find it on page number 92 in your JK Shah notes. I repeat, come to page number 92 in your JK Shah notes. वहां पर आपको न्यू मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स का एक सेक्शन दिख रहा होगा. एंड पहला सेक्शन मॉनेटरी एग्रीगेट्स वर्टिकली, दूसरा सेक्शन न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स, तीसरा सेक्शन लिक्विडिटी एग्रीगेट्स. सो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स vertically. I am starting with the very first part, which is the monetary aggregates. As I told you, this was according to the second working group. तो अगर आप देख रहे हो टेक्स्ट बुक में, तो आपको 4 चीजें मिलेंगी: M1, M2, M3 and M4. तो बेटा what do you mean by M1, M2, M3, M4? Basically these are nothing else but formulas which will help you to find out the money supply in an economy. और ये जो फॉर्मूला है वो मैंने नहीं लिखे हैं, दे आर गिवन बाय आरबीआई सेकेंड वर्किंग ग्रुप. सो M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI. तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं. C का मतलब करेंसीज जो आपके और मेरे पास है. C का मतलब कॉइन्स जो हम डे टू डे यूज में यूज करते हैं. सो करेंसी एंड कॉइन्स. द नेक्स्ट वन इज DD, डिमांड डिपॉजिट्स. Beta, what are demand deposits? Demand deposits are those deposits which can be withdrawn whenever you want. इसका मतलब ये हो गया कि आपको जब पैसा चाहिए तब आप डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू निकाल सकते हो. मतलब कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI. Now this is a very important concept. Beta, what are these other deposits with RBI? Please make note.
CRR, SLR, बैंक रेट, ये सबसे जो पैसा आरबीआई को मिलता है ये वो नहीं है। मतलब कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स रखता है वो हमारे कंट्री के सर्कुलेशन में आता ही नहीं है, और जब सर्कुलेशन में नहीं आएगा तो मनी सप्लाई में कैसे आएगा? सो CRR, SLR इज नॉट अ पार्ट ऑफ अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो सवाल ये आता है कि सर अगर ये नहीं है तो और क्या? तो बेटा द अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई इज द मनी विच इज गिवन टू आरबीआई बाय द वर्ल्ड बैंक, बाय IMF, बाय जापान, बाय USA, बाय एनीथिंग अदर देन SLR एंड CRR। सो बेटा कहना से बहुत बार आरबीआई को पैसा मिलता है फ्रॉम अदर फॉरेन गवर्नमेंट्स, फ्रॉम अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। All that money is included in other deposits with RBI. So बेटा what is M1 का formula? M1 is equal to C plus DD plus other deposits with RBI. Moving on to the second one. M2 is equal to M1. मतलब जो जो M1 में है वो M2 में आएगा, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट। मतलब जो भी आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट के अंदर है वो पैसे को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कहना से M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड नहीं किया पर M2 के अंदर इंक्लूड कर लिया। मतलब M2 में M1 से ज्यादा मनी सप्लाई है। अगर M1 में 100 रुपीज है तो M2 में 100 M1 का प्लस जो पोस्ट ऑफिस में रहेगा वो। तो कहना से द मनी सप्लाई इंक्रीजेस एज यू क्लाइंब द लैडर फ्रॉम M1 टू M2 टू M3 टू M4। अब एक इंपॉर्टेंट बात, व्हाई डू यू थिंक कि पोस्ट ऑफिस का पैसा को वो लोगों ने अलग से M2 में क्लासिफाई किया? बिकॉज जब पैसा हम बैंक्स में रखते हैं तो हम लोग चेक के फैसिलिटी के थ्रू इंस्टेंट मनी ले सकते हैं। There is no time gap. But when you talk about a post office, you probably have to inform them about the withdrawal of your money at least a day prior. मतलब there is a time element. M1 के अंदर जब चाहिए तब पैसा मिलेगा, बट M2 के अंदर छोटा सा प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट ऑफिसेस, बिकॉज पोस्ट ऑफिसेस चेक का सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको पैसा निकालने के पहले उनको इंटीमेट करना जरूरी होता है, जिसमें थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बेटा क्या समझ में आया कि M2 के अंदर टाइम लग सकता है, इसीलिए M2 का लिक्विडिटी कम है पर मनी सप्लाई ज्यादा है। अब M1 का अगर बात करूं तो M1 में मनी सप्लाई कम है पर लिक्विडिटी ज्यादा है। मनी सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा इंक्लूडेड नहीं है। लिक्विडिटी ज्यादा क्यों है? अगेन द सेम रीजन, क्योंकि आपको जब चाहिए तब पैसा मिल जाएगा, पर पोस्ट ऑफिस का पैसा इंस्टेंटली मिलता नहीं है। सो पहला कॉन्सेप्ट M1, दूसरा कॉन्सेप्ट M2, थर्ड कॉन्सेप्ट इज M3। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बुक में है, आई होप यू आर गोइंग थ्रू देम। M3, नाउ M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स। मतलब कहना है इसे M3 के अंदर पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड नहीं किया, जैसे M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स बोला मतलब पोस्ट ऑफिस को तो इग्नोर कर दिया। अब टाइम डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स व्हिच कैन नॉट बी विथड्रॉन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, दे हैव अ सर्टेन टाइम एलिमेंट। मतलब बेटा आप मुझे सोच के बता, M1 से पैसा वापस ज्यादा है, क्योंकि अगर M1 में 100 रुपया है तो M3 के अंदर 100 प्लस टाइम लायबिलिटी है, तो M3 के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है पर लिक्विडिटी और कम हो गया। क्योंकि जब आप एक FD या रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हो तो कम से कम 1 साल का तो खुलवाना पड़ेगा। मतलब वो 1 साल तक आप पैसे को विड्रॉ कर ही नहीं सकते हो। एंड देयरफॉर इन M3 वी हैव M1
plus time liabilities of the banking system. Now M1 is called as narrow money and M3 is called as broad money. Why M1 is called as narrow money? Quite simple, because the money supply is less. Why M3 is called as broad money? Because the money supply is more. मतलब narrow और broad is on the basis of money supply. M1 और M3 को जरा आप अगर देखोगे तो बेटा what is the difference between M1 and M3? चलो देखो, ढूंढो और मुझे बताओ M1 और M3 के बीच में फर्क क्या है? So M1 does not include time deposits but M3 does. So the difference between M1 and M3 is the treatment of time deposits. Time deposits are not included in M1 but time deposits are included in M3, and therefore can I say that M1 is narrow money because the money supply is less, and M3 is broad money because the money supply is more. Now there is another concept which is by the name of M4, but RBI did not give a lot of importance to M2 and M4. So the major consideration and importance was given to two concepts, M1 and M3. M2 and M4, though are a part of measurement, were not given a lot of importance because of the involvement of post offices. क्योंकि बेटा पोस्ट ऑफिसेज में हार्डली 1 to 2% ऑफ इंडियाज मनी इज केप्ट, इसीलिए M2 और M4 को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है. तो बेटा M4 क्या है? M4 इज इक्वल टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट्स. मतलब M2 के अंदर सिर्फ सेविंग्स डिपॉजिट्स का बात किया, बट जैसे ही हमने M4 का बात किया तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स डिपॉजिट्स भी और पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड किया गया है. So in the second working committee or group of RBI, they had suggested 4 measures of money supply, namely M1, M2, M3 and M4. M1 is equal to C plus DD plus other deposits with RBI. M2 is equal to M1 plus post office savings deposits. M3 is equal to M1 plus time deposits of the public with the commercial banks, and M4 is equal to M3 plus post office savings banks का total deposits. M1 is called as narrow money, M3 is called as broad money because M1 में money supply ज्यादा है, M3 में money supply M1 में money supply कम है, M3 में money supply ज्यादा है. Not just that, the major difference between M1 and M3 is the treatment of time deposits. तो बेटा ये तो हो गया the old classification, क्योंकि second working committee का था. उसके बाद in the year 1998 there was the third working committee, और ये जो third working committee थी वो लोगों ने new monetary aggregates दिए. Now these new monetary aggregates were named as NM1, NM2 and NM3. Now NM1 is equal to C plus DD plus other deposits with RBI. आइला, ये तो सेम ही है ना. मतलब कहना है से जो M1 था वही NM1 है. C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI. The next one, NM2 is equal to, याद से ध्यान से इंपॉर्टेंट है, NM2 is equal to NM1 plus time liability portion of savings account. अब ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया क्योंकि एक जगह पर ये लोग सेविंग्स अकाउंट बोल रहे हैं, दूसरी जगह पर ये लोग टाइम लायबिलिटी बोल रहे हैं, और सेविंग्स और टाइम मैच होता नहीं है. तो बेटा आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव अ बैंक अकाउंट, और वो बैंक अकाउंट में आपके पास सेविंग्स अकाउंट होगा. सेविंग्स अकाउंट में से आपको जितना चाहिए उतना सारा पैसा निकाल सकते हो कि एक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है.
So every human who is having a bank account which is a savings account needs to maintain a minimum balance. मतलब वो टाइम एलिमेंट हो गया, वो टाइम लायबिलिटी हो गया. तो NM2 is equal to NM1 plus time liability portion of savings deposit with banks plus सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक्स. अब बेटा ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच बैंक्स कैन रेज फंड्स. बैंक्स कैन रेज फंड्स इन मेनी वेज. सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट. बट ऐसा ही एक और तरीका है बाय इशूइंग अ डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट. नाउ this certificate of deposit is issued by a bank to an individual. मतलब अगर मेरे पास 50-60 लाख रुपया पड़ा है और मैं बोला यार बैंक में ना मेरे को रखना नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर मैंने बैंक में रखा और मेरे को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट में 1-1.5 साल के लिए पैसा रखना पड़ेगा. सेविंग्स अकाउंट में रखूंगा तो मेरे को 2-4 का इंटरेस्ट मिलेगा. मेरे को इंटरेस्ट भी ज्यादा कमाना है, मेरे को टर्म भी ज्यादा नहीं रखना है, तो मैं क्या करूं? तो बैंक्स ने एक नया तरीका इवॉल्व किया. वो लोग बोले कि ऑल दोस पीपल हु हैव एक्सेस फंड्स पार्क इट विद अस. बैंक्स बोलते हैं कि अगर आपके पास 50 लाख रुपया है, आप बताओ आपको कितने टाइम के लिए रखना है और आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए. नाउ दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मोर देन सेविंग्स अकाउंट बट लेस देन फिक्स्ड डिपॉजिट बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. 1 साल के अंदर तक का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बनता है इन मल्टीपल्स ऑफ 25 lakhs. मतलब कहना है से अगर आपके पास एक्सेस फंड्स पड़ा है और आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखना है क्योंकि टाइम एलिमेंट ज्यादा है, तो देयर इज ऑलवेज अनदर वे विच इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. तो बेटा NM2 में क्या आया? NM2 इज इक्वल टू NM1 प्लस टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग्स अकाउंट. मतलब वो जो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा वो, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स विच इज अप टू 1 year, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेजर, प्लस टर्म डिपॉजिट्स मैच्योरिंग विद इन अ ईयर, प्लस टर्म डिपॉजिट्स मैच्योरिंग विद इन अ ईयर. मतलब जो भी आपका डिपॉजिट्स है वो 1 साल के अंदर अगर वापस मिलने वाला है तो उसको आप NM2 में इंक्लूड करोगे. तो देखो बेटा NM1 से बड़ा NM2 है, मतलब NM1 में मनी सप्लाई कम, NM2 में मनी सप्लाई ज्यादा. अब इससे भी ज्यादा मनी सप्लाई कहां होगा? NM3. Now in NM3 we say that NM3 is equal to NM2 plus term deposits maturing after a period of 1 year. तो बेटा हमने पहले शॉर्ट टर्म को कवर कर लिया, अब हमने लॉन्ग टर्म को भी कवर कर लिया. मतलब RBI हैज गिवन वेरी स्मार्ट फॉर्मूलाज. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहिए, शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई चाहिए तो ये फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म चाहिए तो ये फॉर्मूला. पुराना वाला आउटडेटेड हो गया था तो थर्ड वर्किंग कमेटी ने नया मॉनेटरी एग्रीगेट्स दिया. सो NM3 इज इक्वल टू NM2 plus term deposits maturing over 1 year plus call or term borrowings of banks. Now this is important. Call or term borrowings. अब आप सोचोगे सर कॉल और टर्म तो सर 10 दिन 12 दिन 14 दिन शॉर्ट टर्म होता है, और अगर शॉर्ट टर्म होता है तो वो NM2 में आना चाहिए था, NM3 में क्यों आया? तो बेटा अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो वो लोगों ने बोला है कॉल और टर्म बोरोइंग्स नॉट ऑफ इंडिविजुअल्स बट ऑफ बैंक्स. मतलब कई बार बैंक्स बोरो करता है पैसा फ्रॉम अनदर बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जब एक बैंक दूसरे बैंक से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा बोरो करता है तब हम उसको बोलते हैं कॉल और टर्म मनी बोरोइंग्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सो जो आपने अब तक पढ़ा था
वो था ऑफ द इंडिविजुअल्स जो 1 डे से लेकर 14 डेज तक का मैच्योरिटी रखता था. बट यहां पर दिस कॉल और टर्म मनी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम will be considered as long term. So बेटा ये जो थर्ड वर्किंग कमिटी था आरबीआई का इन द ईयर 1998, they gave 3 estimates. NM1 is equal to exactly the same as M1, which is equal to what? चलो बताओ मेरे को. It is C plus DD plus other deposits with RBI. The next one was NM2. NM2 is equal to NM1 plus time liabilities deposits portion of the savings account plus certificate of deposits plus term deposits maturing within a year. The next one was NM3, which is equal to NM2 plus term deposits maturing after a period of 1 year plus call or term borrowings of the banking system. So NM1 narrow है, NM3 broad है, NM1 में मनी सप्लाई कम है, NM3 में मनी सप्लाई ज्यादा है. So till now we have discussed everything, every measurement possible from the point of view of a banking situation. अगर आपने M1, M2, M3 देखा, अगर आपने NM1, NM2, NM3 देखा, तो हमने सिर्फ और सिर्फ बैंक्स पे फोकस किया. इसीलिए आरबीआई ने लिक्विडिटी एग्रीगेट्स दिए जो सिर्फ बैंकिंग को नहीं बट नॉन बैंकिंग को भी इंक्लूड करेगा. सो the basic difference between NM1, NM2 and NM3 and L1, L2 and L3 is NM1, NM2, NM3 was purely based on banking. But when I'm talking about the liquidity aggregates, I'm talking about banking institution, non-banking institution. I'm talking about all the financial institutions, चाहे वो banking हो, चाहे वो non-banking हो. I hope we all know that there is a difference between a banking institution and a non-banking institution. Banking मतलब accepting deposits and giving loans. Non-banking जरूरी नहीं है कि वो deposits accept करे, वो loan दे सकता है, वो सिर्फ deposits भी accept कर सकता है. So there can be a savings bank, there can be a loans देने वाला bank. Financial institutions is a broader concept as compared to banks. Banks are a narrower concept. Financial institutions are a broader concept. Shares, stock market, ये सब financial institutions में आता है, but they are non-banking. So the next 3 concepts that we are supposed to study is L1, L2 and L3. और बेटा हम यहाँ पर सिर्फ बैंकिंग के बारे में बात करेंगे? कतई नहीं. We will talk about banking as well as the non-banking institutions. So the last part, liquidity aggregates में L1 is equal to NM3. पहला बेटा रेफरेंस तो NM3 से लिया, मतलब पूरा बैंकिंग आ गया. So L1 is equal to NM3, मतलब बैंक्स में जो भी है वो सब प्लस all deposits with post office savings bank. So can I say in the new monetary aggregates we had ignored the post offices. Why did we ignore the post offices? Because they were non-banking financial institutions, and therefore when I talk about L1 we have reintroduced the post offices. And when I am talking about L1 I am only talking about the savings account in post offices. I hope I am clear with that. So if you read, L1 is equal to all deposits with post office. I'm sorry, it's not only savings but all the deposits of the post office savings bank. So beta L1 का formula क्या हो गया? NM3 plus all deposits with the post office savings bank. The next one, L2 is equal to L1 plus term deposits with term lending institutions. ऐसा बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है जिसका काम सिर्फ लेंड करना है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. तो बेटा आईसीआईसीआई 2 तरीके का है. एक आईसीआईसीआई बैंक है और एक आईसीआईसीआई जिसका मेन पर्पस था इंडस्ट्रियल क्रेडिट. तो बैंक मतलब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट का बात किया तो नॉन बैंकिंग. सो आईडीएफसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक,
IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जिसका पर्पस है टू गिव लोन्स टू अ स्पेसिफिक सेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, और जो पैसा इनके पास है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है, जैसे कि एक्सिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, their main purpose is to give loans for the purpose of exports and imports for industrial purpose etc. तो केनाई से ये जो पैसा ये स्पेसिफिक बैंक्स के पास है, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इसको। सो व्हाट आर टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस? IDFC, IDBI, ICICI, these are just a few examples. Please make note, मैंने जब ICICI बोला तो मैंने बैंक नहीं बोला है। ICICI बैंक अलग, ICICI अलग, HDFC बैंक अलग, HDFC अलग है, सब HDFC का ही, बट HDFC बैंक इज अ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। HDFC का दूसरा पार्ट HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज नॉट अ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस है टू गिव लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ हाउसेस। सो बेटा टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, आई होप आई एम क्लियर विद दैट। प्लस एक और चीज ऐड होगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जब हमने NM2 में बात किया था, दो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वर इशूड ओनली बाय द बैंकिंग सिस्टम, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट all the certificates of deposits which are issued not only by the banking system but by the entire financial institutions. This was your NM2, and finally there is NM3. NM3 is equal to NM2 plus public deposits of NBFCs, non-banking financial corporations like LIC. LIC is a non-banking financial corporation. तो जो पैसा इनके पास है वो भी इंक्लूड करो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू किया है उसको भी इंक्लूड करो। सो कैन आई से दैट L1, L2, L3 are the liquidity estimates which consider not only the banking but also the non-banking, which basically compromises of the entire financial institution. जहां जहां पैसा अवेलेबल है वो सारा पैसा इंक्लूड होगा। So L1 is equal to NM3 plus all deposits with the public post office savings bank. दूसरा L2 is equal to L1 plus term deposits with term lending institutions plus term borrowings of financial institutions plus certificate of deposits issued by the firms. L3 is equal to L2 plus public deposits of non-banking financial institution. So with this we have covered entirely the new monetary aggregates and the liquidity aggregates. I hope we are clear with that. एक बार सिर्फ मैं L2 वापस डिस्कस कर लेता हूं। L2 is equal to term deposits with term lending institutions, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। What are term lending institutions? So IDBI, ICICI, IDFC, etc. are examples of term lending institutions. Plus टर्म बोरोइंग्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरो करता है वो भी इंक्लूड होगा, जो टर्म इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिट्स के फॉर्म में लेता है वो भी इंक्लूड होगा, प्लस certificates of deposits which are issued by the financial institutions. So this entirely completes the L2 part. I think in my recording I had skipped term borrowings of financial institutions. I hope now I have covered that part and it makes a lot more sense to you all. This is it from the liquidity and monetary aggregates. Thank you.